Okay, next question. Find out the oxidation states of the carbon atoms A and B in CH3CN. This carbon is A and the second carbon is B. So CH3CN, if I have to show, this is the structure of CH3CN. So now let's start assigning oxidation states. So if I consider this part, then hydrogen is assigned +1 because carbon is more electronegative than hydrogen. So here hydrogen is assigned +1 and carbon is assigned -1. Coming to this, again same thing will happen. So -2 and -1. And -2 and +2. let's see it. Then here +1 and again here -1. Okay, now this is carbon, this is also carbon. So we need to check the hybridization. This carbon is sp3 hybridized because it has 4 sigma bonds and no lone pairs. This carbon will be sp hybridized because it has 2 sigma bonds. This is 1 sigma bond, this is the other sigma bond. These two are pi bonds. We do not count pi bonds for hybridization. So the number of sigma bonds is 2 and hence hybridization is sp. We know that sp is more electronegative than sp2, which is more electronegative than sp3. So out of these two, the one which is more electronegative is the one which is sp, and hence that will be assigned -1. So here I will write -1, and here I will write +1. Now coming to this pair of atoms, carbon and nitrogen. Out of carbon and nitrogen, nitrogen is more electronegative, so nitrogen will be assigned -3, and here carbon will be assigned +3. Now why 3? Because there are 3 bonds between carbon and nitrogen. Hence nitrogen has been assigned -3 and carbon will be assigned +3. So now I can find out the oxidation states by adding all the numbers assigned to a particular atom. So if I add all the numbers assigned to the first carbon atom, then I get -2 as the oxidation state. That is -1, -1, -1, +1. If I add all these, I'll get -2. Here, if I add everything, I'll get +2. That is -1 +3. -1 +3 gives me +2. So oxidation state of the second carbon atom is +2. So this is what I'll write. So it's exactly same as what we were doing yesterday. And the average oxidation state will be 0. The average oxidation state of carbon will be 0. Right? The average oxidation state of carbon will be 0. -2 +2 upon 2 is 0. Now, next question. Now, this is a fact which you have to know. Just copy this along with the answer.
Okay. So now we have completed this Fe3O4. So in Fe3O4, what is happening? Fe3O4 is a mixture of FeO and Fe2O3. Oxidation state of Fe is +2 in FeO. Here it is +2, and in Fe2O3 it is +3. So there are two different compounds in Fe3O4. And if I want to find out the average oxidation state of iron in Fe3O4, then it is +8/3. How do I get +8/3? See, in FeO, the oxidation state is +2, that is +2 plus. In Fe2O3, the oxidation state is +3. There are two atoms of Sir, Fe, both Fe there is +3 or yes. so 3 into 2, ये हो जाएगा total oxidation states upon if I divide by the number of Fe atoms. So this is 8/3. Because FeO और Fe2O3, there are two different compounds. तो दोनों कंपाउंड्स में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है. अगर एवरेज निकालना है तो आपको सबका ऑक्सीडेशन स्टेट ऐड करना पड़ेगा और फिर डिवाइड बाय द नंबर ऑफ आयरन एटम्स करना पड़ेगा. Hence 8/3 is the average oxidation state. This is the next question. Find the oxidation state of sulfur in DMSO. DMSO is dimethyl sulfoxide. उसका फॉर्मूला मैं दे देता हूँ. This is the formula, and now you try to find out the oxidation state of sulfur. This is DMSO. DMSO में सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने बोला है. करो. स्ट्रक्चर आपको दे दिया है मैंने. Now you can start assigning oxidation states. क्या आंसर आ रहा है? 0 है. यस, करेक्ट. 0 आएगा. कैसा आएगा देखते हैं. Out of oxygen and sulfur, more electronegative is oxygen. और यहाँ पे दो बॉन्ड्स है, तो यहाँ पे -2 डालना पड़ेगा एंड सल्फर पे +2 डालना पड़ेगा. अब इन दोनों को देखेंगे. Out of sulfur and carbon, sulfur is more electronegative than carbon. सल्फर एंड कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड है, हेंस यहाँ पे -1, कार्बन पे +1. वापस इसको कंसीडर करेंगे. अगेन कार्बन इज less electronegative than sulfur, so sulfur will be assigned again -1 and carbon will be assigned +1. ये टोटल सम ऑफ ऑल दिस चार्जेस अगर मैं निकालूं तो ही मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा इस एटम का. तो सल्फर को जो भी नंबर्स असाइन किए गए हैं सबका सम is going to be the oxidation state of sulfur. So the sum of these numbers is 0. +2 -1 -1. So 0 is the oxidation state of sulfur in DMSO. Any doubt?
So finally we'll write oxidation state of sulfur is 0 in DMS. Okay, now I want to do one more question. That's going to be the final question based on oxidation states. Find out the oxidation state of all the carbon atoms in this compound. Find out the oxidation states of all the carbon atoms in this particular compound. इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इस compound को हम लोग बोलते हैं acetone. क्या बोलते हैं? Acetone. The name of this compound is acetone. Find out the oxidation states of all the carbon atoms in acetone. Start. -2 0 and -2 सिर्फ -2 दोनों है, टर्मिनल पोजीशन का और बीच वाले का 0. बाकी लोग भी देखो. हाँ सर. Let's see. क्या ट्राई करो सब. Okay, let's see. Out of hydrogen and carbon, carbon is more electronegative. तो यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1. अब इन दोनों को देखा जाएगा, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है. Now this carbon is sp3, and what about this carbon? sp2. sp2 होगा because 3 सिग्मा बॉन्ड्स है ना, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड्स है. sp2 out of sp3 and sp2 carbon atoms, sp2 carbon atom is more electronegative than sp3 carbon atom. तो सीधा मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच में अगर कंपेयर किया जाए तो इसको -1 और इसको +1. Right? Now coming to these two, वापस क्या होगा, वही होगा. Out of these two, if I see, then this one is more electronegative, right? इस पे -1 और इस पे +1. Out of hydrogen and carbon, carbon is more electronegative, तो कार्बन पे यहाँ पे -1, हाइड्रोजन पे +1. इस वाले के लिए भी वही होगा, +1. Now you can add and check. Around this carbon atom, if I add
all the numbers, then I'll get -2. Correct? And इस वाले कार्बन एटम में भी if I add all the numbers, I will get -2. So एक्सट्रीम जो दो कार्बन एटम्स हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वैल्यूज आ गई -2. एक्सट्रीम वाले उनको बोलते हैं टर्मिनल. एक्सट्रीम वालों को क्या बोलते हैं? टर्मिनल. So oxidation state of terminal carbon atom in acetone is equal to -2. Now comes the central or the middle one. अब middle one को देखते हैं. मिडिल वाले को ऑलरेडी हम लोगों ने इसको देख लिया, यहाँ पे इसको देख लिया, तो यहाँ तक हो गया. अब देखना है किसको? अब देखना है इस वाले को. इस वाले पार्ट में ऑक्सीजन और कार्बन है. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और दो बॉन्ड्स है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में. तो यहाँ पे -2 एंड कार्बन पे +2. So I have assigned all numbers to the central carbon atom. Now I have to add all these numbers to get the oxidation state of the central carbon. If I add all these, I'll get 0. -1 -1 +2, that is 0. So oxidation state of middle carbon is 0. And oxidation state of terminal carbon is -2. हो गया ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना. अभी कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो स्ट्रक्चर देख के आप निकाल सकते हैं. नेक्स्ट ये हेडिंग है अभी. So start writing. What is oxidation defined as? So the phenomenon of loss of electrons is called oxidation. So if something is losing electrons, I can say that it is getting oxidized. अगर oxidation states के terms से बात करनी है तो we will say if oxidation state increases, that means oxidation is set to have taken place. किसी भी अगर चीज का oxidation state increase हो गया तो हम लोग बोलेंगे वो oxidize हुआ है, वो स्पीशीज ऑक्सीडाइज हुआ है. अगर स्पीशीज में किसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गया तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन. So the phenomenon of loss of electrons is called oxidation. Loss of electrons का मतलब ये होता है कि oxidation state should increase. If oxidation state increases, then I can say that oxidation has happened. तो इसका उल्टा हो जाएगा reduction. Reduction क्या हो जाएगा? The phenomenon of gain of electrons is called reduction. So if oxidation state decreases, then I will say that reduction has taken place. So please write down this fast. Scroll down. लिख लो सब लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के डेफिनेशंस.
Okay. So what is a redox reaction? A redox reaction is a reaction involving oxidation and reduction. So one species gets oxidized, another species gets reduced. Write down definitions. So a redox reaction is a reaction where one species gets oxidized and another species gets reduced. Okay. अब ये लिख लो, कुछ टर्मिनोलॉजी का पार्ट है, इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत, इसके लिए लिख लो. नाउ इफ अ स्पीशीज इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, उसको बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट. ओके, अ स्पीशीज व्हिच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट. शॉर्ट फॉर्म में आरए बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट को. एग्जाम में भी आरए या ओए लिखा जा सकता है. आरए स्टैंड्स फॉर रिड्यूसिंग एजेंट. So a species which gets oxidized is called reducing agent or reductant, and a species which gets reduced is called oxidizing agent or oxidant. So ये आपको याद रखना पड़ेगा. Whichever species gets oxidized, that is called reducing agent, and whichever species gets reduced is called oxidizing agent. सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो. तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है. Double displacement reactions are never redox. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का मतलब क्या होता है? बस आयंस का एक्सचेंज होना. फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ऐसा रिएक्शन लिखूं, अब ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल. मतलब क्या हुआ? इसका कैटायन इसके एनायन के साथ गया, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ गया, एक्सचेंज हो गया. ऐसे रिएक्शंस को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैन नेवर बी रिडॉक्स. तो सीधा आप ये पॉइंट याद करके रख सकते हो कि जब भी आपको कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखे, आप बोल सकते हो सीधा कि हाँ, दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन. तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने की भी जरूरत नहीं है. स्ट्रेट अवे वी कैन से दैट दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन.
Okay, next point is this. आपको ये याद रखना पड़ेगा, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। हम लोग अगर एलिमेंट्स की बात करें, जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में हैं, उनमें से फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। Okay. Next concept, N factor. Short form is NF. The number of moles of electrons gained by 1 mole of oxidizing agent is called NF of oxidizing agent. किसी रिएक्शन में अगर हम लोग बात करें कि NF ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो क्या होता है, वो खुद रिड्यूस होता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, बिकॉज रिडक्शन इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, उसको बोलते हैं एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। So we will see how to find out this n factor, but इसका definition ये है कि the number of moles of electrons gained by 1 mole of oxidizing agent is called n factor of the oxidizing agent. Similarly, I can define n factor of reducing agent also. So ये हो जाएगा n factor of reducing agent. The number of moles of electrons lost by 1 mole of reducing agent in a redox reaction is called n factor of the reducing agent. So ऊपर scroll कर। हाँ सर, नीचे तो Okay. Let's do question now. Question क्या है? Identify oxidizing agent and reducing agent in the following reactions. So कौन OA है और कौन RA है, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं. So first question, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट देखो, एक रिएक्शन देके रखा है आपको,
अब रिएक्शन में सबसे पहला काम क्या होगा, अगर OA और RA निकालना है ना, तो सबसे पहला काम ये होगा कि हम लोग हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें. So the first step is to find out the oxidation states of all the elements involved in that chemical reaction. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखा है सोडियम के ऊपर, क्योंकि सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 है लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, बिकॉज सोडियम इज बिलोंगिंग टू ग्रुप 1, सो इट्स अ मेटल ऑफ ग्रुप 1. तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, +1 ही होता है हमेशा. तो जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, हम लोग उसको नहीं लिखते हैं, सिर्फ हम लोग वो लिखेंगे जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज हो रहे हैं. चेंज हो रहे का मतलब क्या है, रिएक्शन के पहले कुछ और रिएक्शन के बाद कुछ और. So we have written the oxidation states of only those atoms which have undergone change in oxidation states. For example, sulfur. सल्फर का देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है Na2S2O3 में, जो कि रिएक्टेंट है हमारा. प्रोडक्ट साइड पर अगर आप देखो तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2.5 है. सो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है, +2 से +2.5 बन गया. +2 से +2.5 बन गया मतलब मैथमेटिकली इट हैज इंक्रीज्ड. एंड आई सेड दैट अगर इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन. मतलब ये जो स्पीशीज है Na2S2O3 उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, it has got oxidized. Why? Because I can see clearly that the oxidation state has increased from +2 to +2.5 for sulfur atom. इसका मतलब Na2S2O3 has got oxidized. एंड आयोडीन की अगर बात करें तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है I2 में, बिकॉज अकेला है. कोई भी एलिमेंट अगर अकेला होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है. और राइट हैंड साइड पे आप देखो Na कंपाउंड है, Na में I का -1 होगा बिकॉज Na का तो +1 होगा. सो Na में अगर I का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे आप, कैसे निकालोगे Na में, NaI, तो Na का +1 आयोडीन का X मान लो, जैसे हम लोग कल निकाल रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट. सो +1 plus X is equal to overall charge on the molecule. यहाँ से आ जाएगा X equal to -1. सर ये Na2S4O6 का कैसे निकाला? वैसे निकालना, Na का +1, ऑक्सीजन का -2 और सल्फर का X. So +1 into 2 plus X into 4 plus -2 into 6 is equal to 6. उसमें पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? वो तो मैंने तुमको ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स दे दिए है ना, जहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेजेस है. सर उतने ही है मतलब हाँ, जिसमें कल मैंने कितने दिए थे उतने सारे याद करने पड़ेंगे. ओके. सर बाकी सब में -2 ही लेना है ना, मतलब और कोई स्ट्रक्चर नहीं है? नहीं, जितने भी मैंने कर दिए थे उनको छोड़ के बाकी सब में आप नॉर्मल वे से जा सकते पर स्क्रॉल करो ना एक सेकंड. ये वाला सर नीचे है थोड़ा. हाँ हो गया. and so we can see that Na2S2O3 has got oxidized. जो भी चीज ऑक्सीडाइज होती है उसको बोलते हैं Ra. So Na2S2O3 is the Ra. And I2 will be the OA because I2 has got reduced. So अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है मतलब रिडक्शन हुआ है. तो ये हो गया पहला पार्ट क्वेश्चन का. सेकंड करते हैं. सेकंड वन,
ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंने लिख के दिए हैं क्लियरली। अब आगे बढ़ो। So tell me, what is getting oxidized and what is getting reduced? Oxygen reduce, CO oxidize. Yes. कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +4 हो गया है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट हैज इंक्रीज्ड। इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन, एंड सो आई विल से दैट CO has got oxidized. CO has got oxidized. और अगर O2 की बात करें तो O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का 0 है, और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है CO2 में। सो 0 से -2 हुआ है, मतलब चेंज 0 से -2 इज अ मैथमेटिकल डिक्रीज। सर अगर ऐसे क्वेश्चन में कई बार 2 बार प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन आता है तो हम लोग को एवरेज लेना पड़ता है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा जस्ट चेंज देखो कि वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। मतलब अगर दोनों साइड आता, मतलब कुछ दूसरा एग्जांपल होता है जिसमें CO2 प्लस वापस एक बार ऑक्सीजन आ जाता है बाहर। मतलब सर मतलब कोई एक्स एलिमेंट है तो उसका प्रोडक्ट साइड में 2 बार मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सर। अच्छा, ओके, दैट वी विल डू। वेट, so CO has got oxidized here and hence CO will be the reducing agent. O2 has got reduced and so O2 will be the oxidizing agent. Done, sir. Okay. Third one example. थर्ड वाले एग्जांपल में हम लोग कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं। बाकी किसी का चेंज हो नहीं रहा है, इसके लिए बाकी का नहीं लिखा है मैंने। सो HCHO में अगर आप देखोगे तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0। HCOONA में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रहा है एंड CH3OH में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आ रहा है। फर्स्ट फाइंड आउट एंड देन टेल मी। चेक करो ही आ रहे कि नहीं आ रहे। CH3OH, इसमें कैसे निकालेंगे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट? X मान लो ना, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। So X plus 1 into 4, because there are 4 hydrogen atoms, -2 is equal to 0. यहाँ से X will be equal to -2. ऐसे आ गया कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट CH3OH में। वैसे ही HCOONA में निकाल सकते हो, वैसे ही HCHO में भी निकाल सकते हो। सर हम कार्बन का क्यों देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसका मतलब change हो रहा है ऑक्सीजन ना। का वगैरह? ऑक्सीजन का तो चेंज नहीं हो रहा है ना, ऑक्सीजन का यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2 है। ओके, हाँ हाँ चलिए। जिसका चेंज हो रहा है सिर्फ उसी को देखना है, जिसका चेंज नहीं हो रहा है उसको इग्नोर करो। यहाँ पे भी ऑक्सीजन का -2 है, हाइड्रोजन का +1 है,
इसके लिए जिसका चेंज नहीं हो रहा है उसको नहीं देख रहे हैं। सर इसमें कैसे करेंगे? यहाँ पे क्लियर हो गया यहाँ तक? So what is happening here? क्या हो रहा है यहाँ पे? सर ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। एग्जैक्टली करेक्ट। सो 0 से +2 हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब HCHO is getting oxidized to become HCOONA. Also I can say HCHO is getting reduced to become CH3OH because 0 से -2 जा रहा है ना कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट। 0 से -2 मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो इसके लिए बोलेंगे HCHO is getting reduced to CH3OH, which means HCHO is getting oxidized to HCONA and also HCHO is getting reduced to give me CH3OH. एक ही स्पीशीज ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, एक ही स्पीशीज रिड्यूस भी हो रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके स्क्रॉल अप। ऐसा रिएक्शन जहां पे एक ही एटम का, मतलब जैसे यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले 0 था, तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट था रिएक्शन से पहले, दैट इज 0, तो वो बढ़ा भी है और वो कम भी हुआ है, मतलब उसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी हो गया, डिक्रीज भी हो गया। ऐसे रिएक्शंस को बोला जाता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस, जैसा आपको थर्ड में दिख रहा है। क्यों डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? क्योंकि एक ही सिंगल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, इसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। Okay, next question. Fourth one. Tell me what is happening here. मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 कैसे लिखा मैंने? MnO4 माइनस है, मैंगनीज का X ले लो, ऑक्सीजन का -2 लोगे, सो X प्लस -2 into 4 will be equal to charge. Charge on MnO4 क्या है? -1. सर Mn रिड्यूस हो रहा है और Fe ऑक्सीडाइज हो रहा है। So X is equal to +7, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज हमारे पास आ गया +7, इसके लिए मैंने Mn के ऊपर +7 लिखा है। और
Fe जो +2 है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में देके रखा था, Fe का चार्ज। उस तरफ Mn का चार्ज +2 देके रखा है क्वेश्चन में और Fe का चार्ज +3 देके रखा है क्वेश्चन में। सर ऐसे कैसे +3 आया? वो दिया है ना क्वेश्चन में ऑलरेडी। So this is a reaction given to you. मैंगनीज का मैंने निकाला, वो दिया नहीं था, बट बाकी सबका देके रखा था। सर मैंगनीज का +2 उन्होंने दिया था क्या? हाँ हाँ हाँ, वो सब देके रखा था, बस इस तरफ मैंगनीज का मैंने निकाला +7। So now we can see मैंगनीज का +7 से क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। +7 से +2 is a mathematical decrease. Decrease माने reduction. So I can say MnO4 minus has got reduced. MnO4 minus has got reduced. And Fe का +2 से change हो गया +3 में, which is an increase. So I will say that Fe +2 has got oxidized. So this is going to be the answer. So which is the oxidizing agent here? MnO4 minus. MnO4 minus को बोला जाता है परमैंगनेट। इसको क्या बोलते हैं? Permanganate. Already I have given the list of ions on the WhatsApp groups. कल भेज दिया था, तो वो देख लो, वहां पे है ये। Permanganate. So permanganate ion has undergone reduction and hence it is called the oxidizing agent. Fe2 plus has got oxidized and so Fe2 plus is the reducing agent. Okay, done. Next question. Calculate NF of OA and NF of RA in each of the following. अभी हम लोग देखेंगे कि NF कैसे निकालते हैं, यानी N फैक्टर कैसे निकाला जाता है। डेफिनेशन तो ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन निकाला कैसे जाता है वो अभी तक देखा नहीं है हम लोगों ने। So let's see now. So write down the question. Okay. So how do we find out N factor? तो पहले MnO4 माइनस का N फैक्टर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, NF of MnO4 माइनस, क्या उसका तरीका है? आप जिसका N फैक्टर निकाल रहे हो
वहां पे ये देखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स में चेंज क्या है. सो फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल माइनस इनिशियल पहले करना पड़ेगा. व्हाट इज द फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज? +2. What is the initial oxidation state of manganese? That's +7. Final minus initial 2 minus 7 multiplied by जिस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है उसके कितने एटम्स है लेफ्ट हैंड साइड पे. जिस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है उसके कितने एटम्स है लेफ्ट हैंड साइड उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में. इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर Mn का कितना एटम है? एक. ओनली वन ना. सो इनटू 1 करना पड़ेगा और पूरी चीज को मॉड्यूलस के अंदर डालना पड़ेगा. ऑन सॉल्विंग दिस आई विल गेट आंसर एज 5. सो मॉड्यूलस लेना कंपल्सरी है. मॉड्यूलस लेने का मतलब क्या है? The final answer will always be the magnitude only. You will ignore the minus sign if there is any minus sign at the end. सर हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड वाला ही देखना होगा ना. हाँ, एटम्स से जब मल्टीप्लाई करते हो ना वो मल्टीप्लिकेशन का जो नंबर होता है, रिमेंबर दैट हैज टू बी द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. यानी जिसका आप n फैक्टर निकाल रहे हो उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स है वो देखना पड़ेगा. तो मैंगनीज के कितने एटम्स हैं? एक ही एटम है मैंगनीज का MnO4 माइनस के अंदर. Hence I have multiplied by 1. So n factor of MnO4 minus is equal to 5. Coming to n factor of Fe2 plus, क्या होगा? वापस वही तरीका होगा. फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe क्या है? 3 plus 3. Initial oxidation state is 2, that is +2. Final minus initial multiplied by the number of Fe atoms on the left hand side. यहाँ पे भी 1 Fe atom है. ठीक है. अब ये मत बोल देना कि यहाँ पे 5 है तो 5 Fe atoms. कोएफिशिएंट को मत देखना. When you are finding out n factor, kindly do not look at the coefficients which have been used for balancing that equation. Ignore this. Okay. तो सिर्फ ये देखना है नीचे वाला नंबर कितना एटम से Fe के? 1. सो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं. आंसर इज 1. 3 minus 2 into 1 and then modulus of 1 is also 1. So n factor आ गए दोनों के दोनों. n factor of MnO4 minus is 5 and n factor of Fe2 plus is 1. Any doubt? Okay, next. यहाँ पे Cr का +6 मैंने निकाला है, वैसे ही निकाला है x. So 2x plus 7 into -2 is equal to charge on the molecule which is -2. इस तरीके से x का वैल्यू +6 आ गया. So chromium oxidation state is +6 in Cr2O72-. अब n फैक्टर निकालेंगे. मॉड्यूलस साइन डालना पड़ेगा पहले. अब देखते हैं क्रोमियम का फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है. यहाँ पे +3 है. इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का क्या है? +6 मल्टीप्लाइड बाय क्रोमियम के कितने एटम्स है यहाँ पे? 2. तो इस तरीके से हो जाएगा. व्हाट इज आंसर फॉर दिस? 6. So n factor of Cr2O72- is equal to 6.
Tell me the n factor of Fe2 plus. What is n factor of Fe2 plus? Modulus final oxidation state of Fe is +3, initial was 2. So 3 minus 2 multiplied by Fe के नीचे 1 लिखा है, कुछ नहीं लिखा है मतलब नीचे 1 है. So into 1. So answer is 1. So oxidation n factor of Fe2 plus is 1, n factor of Cr2O7 2 minus is 6. हो गया n factor clear? Any doubt? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज इसका अगला चैप्टर भी इसी पे बेस्ड है, n फैक्टर पे ही. इसके लिए अभी से अच्छे से इसको सीख लो, प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर में. सर इसका क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं? वो तो नेक्स्ट चैप्टर जब चालू होगा तभी. फिलहाल तो क्लास में जितने कर रहे हो उतने कर लो, काफी है. ओके नेक्स्ट. यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है. तो वो ओपी मिलेगा ना. हाँ OH माइनस है, वो हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस. Now I have found out the oxidation states of carbon atoms. अब इसमें क्या हो रहा है, कार्बन का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है पहले, और वो इंक्रीज भी हो रहा है यानी 0 से +2 हो रहा है, और वो डिक्रीज भी हो रहा है 0 से -2 भी हो रहा है. क्या बोलते हैं ऐसे रिएक्शन को? डाई कुछ. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब एक ही एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी होगा डिक्रीज भी होगा, उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. जैसे यहाँ पे कार्बन का 0 से +2 हो रहा है विच इज एन इंक्रीज, एंड 0 से -2 भी हो रहा है विच इज अ डिक्रीज. सो दिस रिएक्शन इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में n फैक्टर निकालने का तरीका देख लो अच्छे से. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें इंडिविजुअली एक एक का n फैक्टर निकालेंगे. तो जब HCHO कन्वर्ट हो रहा है HCO माइनस में, यानी ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस 0 से लेके +2 तक का, लेट्स फाइंड आउट द n फैक्टर ओनली फॉर दैट स्टेप. सो n फैक्टर 1, उसको मैं नाम दे रहा हूं NF1, इज इक्वल टू क्या होगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है फाइनल 2, इनिशियल क्या है 0, मल्टीप्लाइड बाय कार्बन का एक ही एटम है यहाँ पे. So NF1 is equal to 2. What is NF1? NF1 is the n factor when HCHO gets converted to HCOO minus. अब NF2 क्या होगा? NF2 होगा when HCHO gets converted to CH3OH. बताओ NF2 का वैल्यू क्या होगा? So 2 ही होगा. Okay. So NF2 is equal to -2 - 0 multiplied by 1 मॉड्यूलस. फाइनली 2 ही आएगा इसका. तो हम लोगों ने पहले इंडिविजुअली NF वैल्यूज निकाल दिए.
जब भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आएगा तो पहले इंडिविजुअली निकाल लेने हैं, जैसे मैंने अभी निकाला NF1 NF2। एक बार सिर्फ उस वाले पार्ट को देखना है जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और फिर एक बार उस वाले पार्ट को देखना है जहां पे रिएक्शन हो रहा है। इन दिस वे आई कैन गेट द NF वैल्यूज। देयर विल बी टू डिफरेंट NF वैल्यूज। अब यहाँ पे NF1 NF2 बराबर आ गया, बट ऐसा हमेशा बराबर आएगा जरूरी नहीं है, बट हाँ आपको पहले इंडिविजुअली निकाल लेना है NF1 और NF2। उसके बाद एक फॉर्मूला लगाना होता है जो ये होता है 1 by NF is equal to 1 by NF1 plus 1 by NF2। और ये NF जो होता है ये होता है ओवरऑल N फैक्टर। सो ओवरऑल N फैक्टर इज कॉल्ड NF, जो निकालना होता है। अब NF1 हम लोगों ने निकाल लिया है, NF2 भी निकाल लिया है, डाल दो वैल्यूज फॉर्मूला में। सो 1 by ओवरऑल NF is 1 by NF1 plus 1 by NF2, ऐसा हो जाएगा। So overall NF is equal to 1। सर ऊपर कीजिए ना। We will have to remember this formula for disproportionation reaction. सर डिस्प्रपोर्शन मतलब इस रिएक्शन में रिडॉक्स होता है? रेडॉक्स तो हर रिएक्शन ही है ना, जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहे हैं वो तो रेडॉक्स ही हो रहे हैं। इसके पहले भी जो किए थे सारे के सारे रेडॉक्स ही थे ना, ये भी रेडॉक्स ही था सेकंड वाला। हाँ समझा समझा। लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ रेडॉक्स वेयर वन सिंगल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी होगा डिक्रीज भी होगा। फोर्थ वन, क्लोरीन में ऑक्सीडेशन स्टेट Cl का 0 होगा, Cl2 अकेला है तो 0 होगा। NaCl में Na का +1 होगा तो Cl का -1 हो जाएगा। NaClO में आप X लेके निकालोगे, ऑक्सीजन का -2, Cl का X, Na का +1, सो +1 प्लस X प्लस -2 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज, कोई चार्ज है नहीं तो 0। यहाँ से X का वैल्यू आ जाएगा +1, सो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ गया NaClO में। ओके, 0 से -1 हो रहा है, 0 से -1 is a mathematical decrease because I can say -1 is less than 0, which means this has got reduced. Cl2 has got reduced. Also Cl2 का यहाँ पे 0 से +1 हुआ है, 0 से +1 is a mathematical increase, which means Cl2 has got oxidized.
तो एक ही एटम है, जीरो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट था पहले, जीरो से +1 भी हो रहा है, जीरो से -1 भी हो रहा है. सो दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. Since this is a disproportionation reaction, I have to find out the NF using that formula which I showed you a few minutes back. Please go ahead and tell me the final value of N factor of chlorine. सर इसका NF का 1 ही होगा ना? कैसे आ रहा है 1, वो दिखाना पड़ेगा ना. You have to show the entire thing. फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वापस. NF1 क्या होगा? अगर मैं NF1 को ऑक्सीडेशन प्रोसेस मान रहा हूं, so 0 से +1 वाला प्रोसेस. So +1 is the final oxidation state of chlorine, that is in NaClO. 0 is the initial oxidation state of chlorine, that is in Cl2, multiplied by the number of chlorine atoms in the reactant. यहाँ से मुझे NF1 आ जाएगा. वैसे ही NF2 -1 -0 into 2 आ गया. NF1 NF2 दोनों आ गए वैल्यूज. अब हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं. क्या आंसर आ रहा है? What is the answer? Final answer. 1. सर 1. So now I can use this. So NF is 1. चलो और एक करो. ये वाला खुद करो अभी. Find out the N factor of chlorine in this. I mean Cl2. Cl2 का N factor निकालो. बताओ मुझे. Do this right now. सर आपने किसका निकालने को बोला? Cl2. हाँ ओके सर.
ओके, यहाँ पे क्लोरीन का 0 आएगा, अकेला है तो। KClO3, KClO3 में क्या आएगा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट? +2। रॉन्ग। सर 5। पोटेशियम का +1 डालोगे बिकॉज वो ग्रुप 1 को बिलोंग करता है, ऑक्सीजन को -2 डालोगे, इसको X डालोगे, सो +1 + X + -2 × 3 = 0। ओवरऑल चार्ज कुछ है नहीं तो इसके लिए 0। सॉल्व करोगे तो X का वैल्यू आ जाएगा +5। यहाँ पे क्लोरीन का -1 आएगा बिकॉज पोटेशियम का +1 होगा। Again, this is a disproportionation reaction. 0 से +5 हो रहा है और 0 से -1 भी हो रहा है। 0 से +5 जब हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैं उसके लिए NF1 निकाल रहा हूँ। सो 5 - 0 × 2 ये हो जाएगा NF1 का वैल्यू। × 2 क्यों किया? बिकॉज Cl के नीचे 2 लिखा है। NF2 = -1 - 0 × 2 आ गया NF1 और NF2। अब लगा दो फॉर्मूला ये वाला, 1/NF = 1/NF1 + 1/NF2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ऐसा आएगा 1/10 + 1/2 will be 6/10। 1/NF का वैल्यू आ गया 6/10, therefore NF का वैल्यू will be 10/6, which is 5/3। so NF is equal to 5/3। तो फाइनल क्या बोलोगे आप? NF of Cl2 is equal to 5/3। okay, fine। last question। 1 mole of N2H4 loses 10 moles of electrons to form a new compound Y. All the nitrogen appears in Y. What is the oxidation state of nitrogen in Y? There is no change in oxidation state of hydrogen. Okay. मतलब क्या? 1 mole of N2H4 is losing 10 moles of electrons. As per definition of N factor, if you check your notes, then N factor of anything which is getting oxidized is defined as the number of moles of electrons lost by 1 mole of the particular species, which means N2H4 का 1 मोल अगर 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो मतलब N फैक्टर ऑफ N2H4 is equal to 10, because वही तो डेफिनेशन ऑफ N फैक्टर है। 1 mole of a particular species is losing how many moles of electrons? That is only N factor, no? Similarly, 1 mole of a species is gaining how many moles of electrons? तो वो उसका N फैक्टर हो जाएगा। इसका मतलब N फैक्टर का वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्टली देके रखा है। 1 mole of N2H4 is losing 10 moles of electrons, which means N factor of N2H4 is equal to 10। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब N2H4 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आता है, अगर आप निकालोगे तो X लोगे, लेट द नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे करो, ऐसा तो आ जाएगा हाइड्रोजन का +1, सो नाइट्रोजन का -2 आ जाएगा N2H4 में। अब Y नाम का एक कुछ कंपाउंड बन रहा है जहां पे नाइट्रोजन है। अब वहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो पता नहीं है, जो निकालने बोला है। मान लिया कि वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज X, तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि N फैक्टर 10 है तो सीधा N फैक्टर का फॉर्मूला लगा दूंगा, फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन माइनस इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। दिस इज द फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, -2 is the initial oxidation state of nitrogen। इनिशियल मतलब क्या?
N2H4 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Because N2H4 is my reactant, I am calling it initial. Y is my product, that is why I am calling it final. ऐसा हो जाएगा. Into 2 because नाइट्रोजन के नीचे 2 लिखा है. So n फैक्टर का वैल्यू सीधा सीधा 10 दे के रखा है क्वेश्चन में, तो मैंने n फैक्टर का फॉर्मूला यूज कर लिया. यहाँ से ऐसा आ जाएगा इक्वेशन. अब मॉड्यूलस को हटाना पड़ेगा. मैथमेटिक्स में अगर वापस जाएंगे, then modulus of y is equal to y if y is positive. Modulus of y is equal to minus y if y is negative. ये होता है मैथमेटिक्स में मॉडुलस का डेफिनेशन. तो जिस चीज का आप मॉड ले रहे हो, उस चीज का जो मैग्नीट्यूड है, आई मीन साइन है, वो साइन जो है उसके ऊपर आपको मॉड लेना है. यानी ये पूरी एंटिटी जो दिख रही है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मॉडुलस हो जाएगा यही वाली चीज, क्योंकि मॉड ऑफ y इज इक्वल टू y इफ y इज पॉजिटिव. बट अगर ये एंटिटी नेगेटिव है तो फिर इसका मॉडुलस हो जाएगा माइनस ऑफ इट, बिकॉज मॉडुलस ऑफ y इज माइनस y इफ y इज नेगेटिव. ऑलराइट, अब उसके लिए क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा ठीक से तो समझ में आएगा. क्वेश्चन क्या बोलता है? loses electrons. N2H4 is losing electrons. As per definition, losing electrons का मतलब होता है oxidation. Because oxidation का definition मैंने आपको आज लिखवाया था, उसमें बोला था मैंने कि oxidation means loss of electrons. If oxidation means loss of electrons, at the same time मैंने ये भी कहा था कि oxidation state का बढ़ना is oxidation. मतलब जो final oxidation state है, that has to be greater than the initial oxidation state. तो ही oxidation state बढ़ रहा है, यानी oxidation हो रहा है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है. सो जो फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज x हैज टू बी ग्रेटर देन द इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन व्हिच इज -2. अगर फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा है तो ही तो हम लोग बोलते हैं ना प्रोसेस को ऑक्सीडेशन. तो इसके हिसाब से आई कैन से x + 2 इज ग्रेटर देन 0. मतलब ये पूरी चीज हो गई हमारी पॉजिटिव. सो इसका मॉडुलस विल सिंपली बी इक्वल टू दिस. हटा दिया मॉड, आ जाएगा यहाँ से x का वैल्यू. सो द फाइनल आंसर इज +3. और 1 मिनट आप क्वेश्चन दिखाओगे? हाँ, क्वेश्चन ही मेन था यहाँ पे, हर एक वर्ड क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट था. सर नीचे थोड़ा. I will send the notes. हाँ, sir. Please revise these and come for the next lecture.